Hello students, myself Suman Shekhawat and I am teaching social science in Gromore School, Himmatnagar. Student, today we discuss our chapter 8 from civics, framing of constitution and its features. But our today's topic is process of framing constitution. So before going to start this chapter, students, we learn about the constitution of India and how many persons were involved to make our constitution. That means hundreds of people involved to make our constitution. And students, that 300 representatives were included to make our constitution and 166 sessions were held for the year 2 years and 11 months. Okay, and I think 17 days more. So, our constitution enacted on 26th November 1949. That means student, हमारा जो constitution है वो कब बन के ready हो गया था? It's 26th November 1949 and enforced on 26th January 1950. That means उसको लागू कब से किया गया? 26th January 1950. And students, you know that we celebrate 26th November as a Constitution Day and 26th January as a Republic Day. So, students, you know that Britishers wanted to write the Constitution for India before they left, but this idea was, however, rejected by the Indians. That means जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के जाएं यहाँ से जाने से पहले, लेकिन इंडियंस ने क्या किया? उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया. And students, now topics to be discussed in this video. So very first we know the meaning of constitution, and then after the importance of constitution, and then after process of framing of constitution. So let's start with constitution means. That means what do you mean by constitution? अगर students simple way में मैं आपको कहूँ कि constitution क्या है? Constitution is just a collection of documents. That means ये एक कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है. इसके अंदर हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. अब वो क्या है वो हम देखते हैं. एंड एनी सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स डिजाइन टू गवर्न अ कंट्रीज regime is known as constitution. That means systematic collection of rules. जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका सिस्टमैटिक कलेक्शन किया गया है, उनको डिजाइन किया गया है. क्यों? टू गवर्न अ कंट्रीज regime, यानी किसी भी कंट्री का जो शासन है उसको किस तरीके से चलाना है, गवर्नमेंट उसको किस तरीके से चलाएगी, वहां पे क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है. तो इन सभी चीजों को हमने क्या माना है? कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बताता है कि किसी को भी मतलब जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो कैसे अपने देश को चलाएगी, क्या वो कर सकती है और क्या वो नहीं कर सकती. सभी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब की हुई है. सो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड नो दैट कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरत क्यों है हमें. Okay, let's take to understand that constitution is the basic and most important document. That means जो हमारा constitution है वो हमारा basic और most important document है. Basic means जिसको हम आधारभूत कहते हैं, बहुत ही जरूरी, मेन. और most important that means जरूरी है ये किसी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए. And the laws of the country are based on the constitution. जो हमारे देश के जितने भी laws, नियम, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सभी हमारे constitution पे based है. The country's constitution and the constitutional law
should be subject to relevant provisions. That means हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाया गया है, वो क्या है, रिलेवेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जिन जिन चीजों से हमारे देश को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. The constitution is superior to all the laws of the country. That means हमारे देश का जितना भी नियम न्याय तंत्र है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर है. कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं. अगर आज हम हमारे देश की बात करें, there are three organs of the government. First one is legislative, then executive, and then judicial. So the constitution is superior from among this. इन सभी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सबसे सुपीरियर है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स periodically changes requirements of the pupils, aspiration, expectations, interest, as well as the emotions which are high. That means students, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, पीरियोडिकल चेंजेस, यानी टाइम टू टाइम हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं तो कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स, एस्पिरेशन यानी जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं, अगर लगता है कि हाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं, हमें चेंजेस करने चाहिए, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द मेंशन इन पर्टिकुलर द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, बताया गया है कि कैसे हम किसी भी आर्टिकल्स में, एक्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं. जैसे कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, प्रीवियस ईयर्स जम्मू कश्मीर में 360 आर्टिकल को रिमूव किया गया था, तो वो भी हमारा इसी का एक पार्ट था कि अगर हमें ये आर्टिकल रिमूव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पूरा प्रोसेस बताया गया था कि कैसे उसको पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर इतनी मेजॉरिटी के साथ में उस लॉ को चेंज किया जा सकता है. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इन द फॉर्म ऑफ बुक, उसमें मेंशन है. That's the reason constitution is known as live and basic document. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हम चेंजेस कर पाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बदलाव कर पाते हैं, उसकी वजह से ये लाइव और बेसिक डॉक्यूमेंट, लाइव यानी जीवित. अगर आज हमें किसी चीज की जरूरत लगती है कि ये चेंजेस होने चाहिए, सोसाइटी में चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वैसे हमें भी चेंज होने की जरूरत है. दैट्स वाई हमारे लॉज में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए, तो हम वो चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लाइव और बेसिक डॉक्यूमेंट कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स हमें स्वतंत्रता मिलने से पहले, द ब्रिटिश गवर्नमेंट on 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find a solution to the questions of India's independence. यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, ड्यूटी हैंड ओवर कर दी हमारे कैबिनेट मिशन को, जिसके अंदर 3 मेंबर्स थे, जो कि क्या कर रहे थे, जो हमारा इंडियाज इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे. तो उन्होंने पर्टिकुलर 25th मार्च 1946 को पूरी की पूरी ड्यूटी हैंड ओवर कर दी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिसाइडेड. दैट मीन्स जो हमारा कैबिनेट मिशन पर्टिकुलर डिसाइड किया गया था, उसके हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ, और उसके हिसाब से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जो ढांचा होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब डिसाइड हो गया. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्राइज्ड 389 मेंबर्स. जैसे प्रीवियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 300 मेंबर्स ऑलमोस्ट, बट here the exact members are that 389 members, in which various members from different religion,
caste, gender, and people from various geographical diversification, political representatives, and experts from various sectors were included. जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके अंदर 389 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया था, वो भी डिफरेंट रिलीजन से, दैट मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अलग अलग धर्मों से लोगों को लिया गया था। कास्ट, अलग अलग जातियों से। जेंडर, दैट मीन्स फीमेल्स भी थे, मेल्स भी थे। एंड पीपल फ्रॉम वेरियस जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ से लिए गए, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, एंड एक्सपर्ट्स थे वेरियस सेक्टर्स के, अलग अलग सेक्टर्स, अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर बोले, साइंस सेक्टर बोले, तो अलग अलग सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट पर्संस को भी हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर्स थे उसमें इंक्लूड किया गया था। अब इसके अंदर कुछ नाम दिए गए हैं। वेरी फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामनाथ, फ्रैंक एंथोनी, कन्हैया लाल मुंशी, Krishna Swami Iyer, Baldev Singh, and women representatives Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit, etc. were the members of the Constitution Assembly. Now, student, here you just focus that Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constitution Assembly. आप सभी को ये याद रखना है that Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constitution Assembly. The word president you should remember कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. A drafting committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अब एक ऐसी कमेटी का ड्राफ्ट किया गया, बनाई गई, जो कि ड्राफ्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाएगी, लेकिन उसका चेयरमैन, उसका लीडर कौन होगा? चेयरमैन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, जो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली था उसका चेयरमैन बनाया गया. तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपके लिए आते हैं, वन इज द प्रेसिडेंट एंड सेकेंड वन इज द चेयरमैन. तो प्रेसिडेंट was Dr. Rajendra Prasad and the chairman was Dr. Bhimrao Ambedkar. This Constitution Assembly started working from 9th November 1946. Student, आप सभी को ये याद रखना है that जो Constitution Assembly थी वो कब अपना काम करना स्टार्ट किया इन लोगों ने? 9th November. And you know that student, this is my birthday date, 9th November 1946, before 1 year of our independence. So all of you, I hope you remember the date 9th November 1946. Now this is the picture of our Constitution of India. This Constitution Assembly started its work from 9th November 1946. The Constitution Assembly met for 166 session spread over a period of 2 years, 11 months and 17 days. So all of you remember that how many time to make our constitution? It's 2 year, 11 months and 17 days. Okay, the 2, 11 and 17. Remember that 2 years, 11 months and 17 days. And how many sessions? That 166 sessions were held to make our constitution. Members of the assembly had discussed threadbare each and every detail of its provisions, keeping in concern the matter of constitution of different countries. That means जो भी हमारे constitution assembly के members थे, उन्होंने threadbare, that means जितनी भी पुरानी ancient knowledge थी वो भी, plus each and every detail, हर छोटी से छोटी चीज को भी उन्होंने देखा, समझा, अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा, समझा कि वहां कैसा है, क्या है. तो सभी चीजों की स्टडी करने के बाद उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 295 आर्टिकल्स and 8 appendices
आफ्टर अमेंडमेंट यानी कुछ उसमें चेंजेस किए गए, उसके बाद में विद 395 articles and 9 appendices, the constitution was framed on 26th November 1949. Here you also remember the date. It's 26th November 1949 when the constitution was framed, only framed, okay? सिर्फ बन चुका था, लागू नहीं हुआ था. Now the constitution was unanimously passed in the constitution assembly. That means unanimously means सर्वसम्मति से, यानी सभी एग्री हो गए थे. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसमें वो पास हुआ. On 26 January 1950, Constitution of India came into existence and India was declared a republic nation. That means 26 January 1950 को हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स हो गया, लागू हो गया, और तब से हमारे देश को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? रिपब्लिक नेशन, गणतंत्र देश जिसको हम कहते हैं. देयर आफ्टर every year on 26 January we celebrate Republic Day with national favor. Okay, so तब से हम क्या कर रहे हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं on every year 26 January. Now in the Indian Constitution we have 4 lions as national emblem and national slogan Satyamev Jayate. That means truth will always win. Here you see in this picture, below the write down the Constitution of India, the 4 line emblem जो आपको दिखाई दे रहा है, national emblem है हमारा, and below the national emblem Satyamev Jayate लिखा हुआ है. So you, I think, able to see it's just little bit in small size. Now the Constitution provides for citizenship, rights and duties of the people, directive principles of the state policy, union state relation, elections and emergency provisions. That means students, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या लिखा गया है? अबाउट द सिटीजनशिप, किसको हमारे देश की नागरिकता मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या हमारी ड्यूटीज है और क्या हमारे अधिकार हैं, इन सब के बारे में बताया गया है. देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, किसी भी राज्य को चलाने के लिए किन किन नियमों की जरूरत होती है, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं, वो सारी चीजें. एंड यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो सारा डिस्क्राइब किया गया है. देन इलेक्शंस की टाइमिंग में किस तरीके से इलेक्शन होना है, एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, लाइक अगर अभी कोरोना वायरस में जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है इसको हम इमरजेंसी के तौर पे अगर हम देखें तो लॉकडाउन किया गया. तो ऐसी सभी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर कभी वॉर हो जाए, इमरजेंसी की कोई हालत हो जाए तो क्या करना है, क्या राइट्स हमारी गवर्नमेंट को मिलेंगे, ये सभी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. सो दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट डिटेल्ड एंड इलोबरेटेड नेशनल डॉक्यूमेंट. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिटेल्ड, इसमें विस्तृत तौर पे पूरी जानकारी दी गई है. ओके हमारे, इसलिए हम इसको डिटेल्ड एंड इलोबरेटेड नेशनल डॉक्यूमेंट कहेंगे बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई. नाउ स्टूडेंट्स, this is the picture. Here you see the members of which they were make our constitution. अगर आप देखेंगे फर्स्ट सिटिंग रो में आपको जवाहरलाल नेहरू दिखाई देंगे, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो दिखाई देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट स्टैंडिंग में दिखाई देंगे. सो ये सभी मेंबर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्वाइन हुए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करी. नाउ स्टूडेंट्स, thank you for watching my video. Shortly I will come with my next video. Till that, stay at home. Bye bye, take care.